Okay, good morning, students. So this is the second part of your chapter, role of government in the health. So we have discussed in the last part we have discussed with the two story. One of the Hakim Sheikh and other was of the two friend Aman and Ranjan. We came to the concept that in our country we follow the two type of healthcare services, that is public and private health facilities. So now what is public? Public means the general public, I and you. So the public health service is a chain of health centers and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. At the village level, there are such there are health centers where there is usually a nurse, a village health workers. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at primary health center. So basically the public health services are the chain of hospitals which are run by the government. यानी उनका जो फंडिंग होता है, वहाँ के डॉक्टर नर्सेस की जो सैलरी होती है, जो मेडिसिन का खर्चा होता है, जो वहाँ इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराना, वो सबकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट पूरा करती है. सच टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स कैन बी सीन इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो एंड इन द रूरल एरियाज ऑल्सो. और विलेज में बेसिकली क्या इन्हें जाना जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से, क्योंकि एक छोटे क्लिनिक जैसा होता है जहाँ पे डॉक्टर्स और नर्स होते हैं. सच अ सेंटर कवर्स मेनी विलेज इन अ रूरल एरिया एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में प्राइमरी लेवल पे यानी विलेज लेवल पे देयर आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर. नाउ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो इन सारे PHC यानी जितने भी विलेज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन सबको मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं. Large cities have many government hospitals such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals such as ones in Hakim's story. So अगर हम urban areas की बात करें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, कॉमन भी होते हैं, जैसा कि हमने हकीम शेख और अमन की स्टोरी में देखा था. यस. Now, health service is called public. Now, why this health service is called public? Because of many reasons. So, what were the reasons? In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, government has to establish this hospital and health centers. तो पहला आप कह सकते हो रीज़न जिससे ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इस्टेब्लिश किया गया, दैट वाज बिकॉज everyone should get the proper health care thing. Also, the resources need to run the services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes. जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से सारा खर्चा करती है और गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से उसको करती है. इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है इन हॉस्पिटल्स में लगाने का, वो कहाँ से आता है? वो जो हम टैक्स पे करते हैं. तो इसलिए पब्लिक जो टैक्स पे करती है उसी को गवर्नमेंट उनके बेनिफिट में यूज़ कर रही है. दैट इज़ ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड दी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health services, either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. तो अगर आप अपने सिटी की बात करो, कानपुर में जो लोग हैं उनको पता होगा, जैसे हैलेट है, रावतपुर में कार्डियोलॉजी है, तो ये सब क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स हैं जहाँ पे आइदर फ्री और एट अ वेरी लो कॉस्ट द ट्रीटमेंट आर डन एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल. पर प्रॉब्लम इज़ देयर कि ओनली पुअर tends to move towards these centers.
Another important functions of the public health services is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see the mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc. This has to be done for all houses in the area. So basically government इन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स का ये भी काम होता है कि सोसाइटी में कोई बीमारी फैल ना रही हो. यस, इन सारी चीज़ों का देख लो. जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना का स्टेज है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस केस में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन से हॉस्पिटल्स हैं? दे आर द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स. यस, एंड दे आर वर्किंग in this for free for everyone. Now recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the court said in this case? तो हमने डिस्कस किया था, उसमें जजमेंट नहीं दिया था. According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of people and provide health care facilities to all. तो ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि क्योंकि इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी में सबको बराबर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट प्रोवाइड किया है. तो गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. सो इसी से आता है, गवर्नमेंट ने हमें एक राइट दिया है, दैट इज़ राइट टू लाइफ. यस, यानी हर किसी इंसान को जिंदा रहने का पूरा अधिकार है. सो इसी राइट के वायलेशन के अगेंस्ट हकीम शेख ने कोर्ट में केस जब फाइल किया, तो कोर्ट सेड दैट डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. So कोर्ट ने ये तो फैसला कर दिया कि राइट टू लाइफ जो गिवन है पब्लिक को हमारी कंट्री में, वो वायलेट हुआ है, वो राइट वायलेट हुआ है. यस, the court also said that it was the duty of government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situation. Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, court asked the state government to give him the money that he had spent on his ट्रीटमेंट. तो गवर्नमेंट ने इसमें और क्या फैसले लिए कि गवर्नमेंट ने इसमें और क्या फैसले लिए कि जो कोर्ट है, यस, कोर्ट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को ड्यूटी है कि सबको नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना इवन इन द इमरजेंसी सिचुएशन. यस, एंड उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि ऐसा क्या हो गया कि आप हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ हकीम शेख को वो प्रोवाइड करने में फेल हुए. यस, एंड कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आपको इनको जो भी खर्चा हुआ इनके ट्रीटमेंट में, दैट यू हैव टू रिफंड. सो बेसिकली वी विल अगेन लुक टू पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स क्या हैं. दिस आर रन बाय द गवर्नमेंट. यस, इट कैन बी फाउंड इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. रूरल में at the primary level there are primary means at the village level there are primary health centers. At the village level, district level, there are district hospitals, and in the large cities there are also specialized government hospitals. It is called public because it is run by the money given by the government, and government has the money in the form of tax that we pay. Yes, and so that and it is open for all. Its duty is also to look to the diseases such as कि TB, मलेरिया, ये सारी चीज़ें ना फैलें, है ना. एंड हकीम शेख की स्टोरी की बात करें तो वहाँ आपने देखा है कि उनको क्या दिया. इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है जो यहाँ आपके पिंक बॉक्स में लिखा है, वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. मतलब हम टैक्स क्यों पे करते हैं. यस, आप इसको रीड करेंगे, आई विल क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू. सो हम जो पैसा टैक्स के रूप में पे करते हैं, तो आप ये आपने देखा गवर्नमेंट उन्हीं पैसों को हमारे बेनिफिट में यूज़ करती है. अब वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. जो डिफेंस सर्विस वाले हैं, यस, यानी गवर्नमेंट जिनको भी सैलरी देती है,
वो सैलरी गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है सैलरी देने के लिए? तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए जो पैसा आता है दैट इज़ आवर टैक्स। जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवे बनाए जाते हैं, वो हम उन्हीं टैक्स वाले पैसों से बनाए जाते हैं। यस, एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट नई नई चीज़ें करती है, नए प्रोग्राम्स लाती हैं, यस, न्यूक्लियर मिसाइल या फिर कोई रिसर्च होता है, या जैसे मिशन मंगल हुआ, ठीक। तो मंगलयान में भी जितना पैसा लगा वो पैसा क्या था? दैट इज़ द टैक्स। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक इनकम का सोर्स है, दैट इज़ टैक्स। और सारे लोग जो टैक्स भरते हैं दैट इज़ टेकन टुगेदर एंड यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ ओनली, यानी हमारे ही फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट वो यूज़ करती है।